ठीक है, let me reframe that. Everybody wants a six pack and everybody wants to be a millionaire. 99% अवाम के पास ना सिक्स पैक है ना मिलियन है। तो आप और मैं अगर लेट्स से 150 किलो का डेडलिफ्ट मार रहे हैं तो शायद हम इंजरी प्रिवेंट कर रहे हैं। Obviously we're building strength back there. Yeah. तो एक पेपर उठाने से तो एटलीस्ट हमें छुट्टी नहीं करनी। प्लान के बगैर अगर एक गोल है तो दैट्स जस्ट विशफुल थिंकिंग। मतलब अगर अभी तो हम ये छोटी मोटी चीज़ों पे आ गए ना कि हमने जिम जाना है, अच्छा हमने फिजिक सेट करनी है। इन द अर्लियर डेज जब दे हैड वॉर्स गोइंग ऑन, तो इफ दे सेट कि अच्छा बस Yeah. Ladies, that didn't sound right. Ladies and gentlemen, boys and girls, khawateen और हजरात, welcome to Alpha Talks. मैं हूँ बाबर बुच्चा from Butch Athletics and मेरे साथ बैठे हैं the dashing Mr. Zafir Sindhu. हेलो गाइस। मैं और ज़फ़ीर तकरीबन कोई 10 साल की फ़िटनेस जर्नी पे खड़े हैं। इसका मतलब कि मैंने तकरीबन 10 साल पहले जिम में पहला पाँव रखा था। मेरी स्टोरी कुछ ऐसी है कि माई वेस्ट वॉज 42, माई वेट वॉज ओवर 100 kgs। काफ़ी बुरा हाल था। Where did you start, man? I also started around a decade ago, but before we get into our stories, I would like कि हम बात करें what we're here for an Alpha Talk, जो basically हमारा एक काफ़ी awaited venture था। हमने finally we were sitting here and we started finally, yes. So what do you think? What is it about? Alpha Talks मेरे ख्याल में is about being a better you, and being a better you covers entrepreneurship, fitness, Lifestyle in general, motivation. We'll be talking about a lot of stuff here. looking and feeling good and getting rich along the way. As the name suggests, we're gonna help people find out their inner alpha and we'll help them out with some positive inspiration, I hope. इसकी ज़रूरत भी है ना यार, क्योंकि कहते हैं everybody wants to lose weight and everybody wants to be a millionaire. ठीक है, let me reframe that. Everybody wants a six pack and everybody wants to be a millionaire. 99% अवाम के पास ना सिक्स पैक है ना मिलियन है। तो कुछ तो यार लोग गलत कर रहे होंगे ना। उसने बहुत कुछ गलत कर रहे हैं। और मेरे और तुम्हारे पास मिलियंस ना हो, लेकिन आई थिंक सिक्स पैक है थोड़ा बहुत। कहीं थोड़े बहुत। So we're halfway there around. तो as statistics would have it, 85% वो लोग जो वेट लूज करते हैं gain it all back and then some. क्यों यार? ये इतने सारे लोग वजन जो कम कर लेते हैं, बहुत सारे लोगों को मैं जानता हूँ जो कि जब आप कहेंगे 10 किलो वजन गिरा देंगे, उनको आता है PhD की उन्होंने वजन, हर फैमिली में ऐसे कुछ लोग होते हैं, है ना। जब आप बोलेंगे कि अभी वजन कम करना है, वो 2 महीने में आपको कोई एकदम ड्रामेटिक ट्रांसफॉर्मेशन करके दिखा देंगे। तो उनका वजन क्यों बढ़ जाता है वापस? क्या व्हाट डू यू थिंक द इशू इज? वो एक अनसस्टेनेबल वे या कह लेंगे मतलब उनके पास कोई राइट ब्लूप्रिंट नहीं है टूवर्ड्स लूजिंग द वेट इन द करेक्ट फॉर्म। तो उनको जो सबसे इजी वे आउट लगता है वो उस वे की तरफ जाते हैं एंड देन दे इवेंचुअली एंड अप बीइंग एट नो प्लेस एट ऑल। Very right. And the easy way that you think is actually not even a way there. क्योंकि अगर आपको let's say 30 पाउंड वजन कम करना है, right? And you get halfway there and give up, तो basically आपने वजन तो कम किया नहीं. And if you gain it all back, उसका भी कोई फायदा नहीं हुआ. True. So we're basically going to be talking about our journeys first and then we're going to help people find out how they can start their own journeys, right? That is the agenda for today. Okay. So tell us about yourself. What was your journey about? So I've already said waist 42. एक image, John, please display कर देना यार. We'll have it on the screen somewhere. मैंने basically gym join किया because I got, मेरा बेटा है दानियाल, he turned 1 year old. जब उसका first birthday था, तो I felt यार मैं cool बाप नहीं हूँ. I'm not a cool dad. ठीक है, I was extremely unfit. 2 flight of stairs में नहीं चढ़ सकता था, सांस चढ़ जाता था. ठीक है, I was like any average man aging along his 30s. ठीक है, and that's when I joined the gym. And now 9 years later, जो चीज़ निकली है, John, if you can display a picture of me kind of looking all hot and stuff, yeah. तो अब मैं कुछ ऐसा दिखता हूँ. And in this journey,
हमने 1 लाख गलतियां की और उसमें से सबसे बड़ी गलती वही है जो आपने कहा, अनसस्टेनेबल। हम कुछ अनसस्टेनेबल क्यों करते हैं? क्योंकि हमें जल्दी होती है, हमें जल्दी चाहिए। फौरन ना। एंड ये आइडिया हमें लगता है कि हम पहले इंसान है दुनिया में जिसको ये आइडिया है कि मैं फौरन अपना वजन कम कर लूँ और मैं रख लूँगा। एवरीबडी जस्ट थिंक्स कि वो कर लेंगे, बट लोग नहीं कर पाते। और इसलिए नहीं कर पाते क्योंकि अच्छी हैबिट्स डेवलप नहीं करते। आप अपने आप को 2 महीने टॉर्चर करके अगर वापस आपने वहीं जाना है तो 2 महीने टॉर्चर किया ही क्यों था यार? और वो वापस वहीं भी नहीं जाते। देयर आर लॉट ऑफ सेटबैक्स, जो कि जिस तरह अगर हम बात करें अनहेल्दी वेज ऑफ लूजिंग फैट या लूजिंग वेट, तो उसमें कहीं ना कहीं दे लूज देयर मसल्स एज वेल। तो उसमें फिर देयर समवेयर बिहाइंड जहाँ पे उन्होंने स्टार्ट लिया था वहाँ से। तो मसल लॉस यू से इज आल्सो वन ऑफ द फैक्टर्स। अगर इस तरीके से एक्सट्रीम फैट लॉस की तरफ अगर बंदा, अच्छा, एक्सट्रीम क्या नहीं है? आप क्या कहते हैं एक्सट्रीम? कौन सा वेट लॉस एक्सट्रीम नहीं है? आई थिंक बिल्डिंग हैबिट्स, जिस तरह आप बात कर रहे थे कि हैबिट्स, जिस तरह एरिस्टोटल का भी एक कोट है, आई डोंट रिमेंबर द एग्जैक्ट कोट, लेकिन इट गोज लाइक कि एक्सीलेंस इज नॉट an action or is not something an act, but it's rather the habits that you develop over time. So doing smaller things consistently get you to the place you want to be eventually. तो इसी तरह फैट लॉस की अगर हम बात करें तो हमें स्मॉल स्टेप्स के साथ, वो जिस तरह एक स्नोबॉल इफेक्ट होता है या एक मल्टीप्लायर इफेक्ट होता है, 2 into 2 दैट इवेंचुअली एड्स अप टू अ बिगर नंबर, उस पैटर्न पे चलना ज़्यादा बेहतर रहता है अकॉर्डिंग टू मी। तो लेट्स से अगर किसी को एक सर्टेन अमाउंट ऑफ वेट कम करना है तो आप क्या कहेंगे उसको कि क्या आप पहला काम आप क्या करें? पहले तो अभी हम ये बात करें ना कि लोगों का इतना वजन है, तो इसके मतलब जो सफरिंग्स हैं, जो लोग आजकल सफ़र कर रहे हैं, जिस तरह हमने अभी उस दिन बैठ के डिस्कस किया था कि वो कौन सा पॉइंट बता रहे थे, 85% ऑफ पीपल, All people that lose weight in the world, 85% of them gain it all back and then some more. there was another point that you mentioned earlier कि something about back pain, I don't remember exactly. वो तो मसल रिलेटेड है, वो तो मसल रिलेटेड है। हाँ, It was about injury कि बहुत सारे लोग होते हैं, 85% people I guess you were talking about 85% of people जो है वो पेपर उठाते हुए उनकी बैच का। the fact was कि in the states there are 90% जो लोग absent होते हैं from their jobs is because of back pain, and maximum जो cause of back pain है वो है picking up a paper from the floor. तो आप और मैं अगर लेट्स से 150 किलो का डेडलिफ्ट मार रहे हैं तो शायद हम इंजरी प्रिवेंट कर रहे हैं। Obviously we're building strength back there. Yeah. तो एक पेपर उठाने से तो एटलीस्ट हमें छुट्टी नहीं करनी पड़ेगी। तो कमिंग बैक टू द पॉइंट कि यार सस्टेनेबल में मेरा तो यार पहला किसी को भी whenever somebody comes up to me and says कि यार मुझे वजन कम करना है, ठीक है, they're very motivated, inspired, हाईली मोटिवेटेड, आज ही करना है, रातों रात देखा होता है किसी की फिजिक देखी होती है सुबह एंड देयर ऑल अबाउट इट ना, ठीक है, दे वांट। ये इंस्पिरेशन जो है ये ज़्यादा देर मैंने चलते हुए देखी नहीं है, ठीक है, 24 आवर्स मैक्सिमम 48 आवर्स एंड द मोटिवेशन इज ऑल गॉन। दैट इज बिकॉज अगेन दे डोंट वांट इट बैड इनफ, दैट्स व्हाट आई थिंक। उस दिन एक बड़ा अच्छा कोई बात कर रहा था कि यू लाइफ इज गोना हैव पेन, आइदर यू गोना हैव द पेन कि यार मेरा वेट बहुत ज़्यादा है, मैं बहुत अनफिट हूँ, ठीक है, माई क्लोज डोंट फिट, आई डोंट लुक गुड, और यू हैव द पेन मैन आई एम टू सेक्सी, आई हैव टू गो टू द जिम एवरी डे, ठीक है, तो यू चूज द पेन। I guess we know our pain. Yeah. तो as far as weight loss is concerned, the first thing that मैं जो लोगों को कहता हूँ वो ये बोलता हूँ कि calm the fuck down, ठीक है, आराम से, ठीक है, हमने वेट लॉस करना है या हमने मसल गेन करना है, किसी भी किस्म की ट्रांसफॉर्मेशन जो है वो ओवरनाइट नहीं होती। जो भी बंदा जिसकी फिजिक बनी हुई है, चाहे वो मूवीज़ में आ रहा हो, चाहे वो आपको कहीं राह चलते तो आजकल अच्छे लोग नज़र नहीं आते इतने, लेकिन लेट्स से, तो वो या तो जिम जा रहा है और जिम जाता रहा है फॉर क्वाइट सम टाइम, सो जस्ट गेटिंग देयर एंड स्टेइंग देयर ऑन अ फिटनेस जर्नी, जिसके काफ़ी सारे तरीके, मैं तो सिर्फ वो तरीके की बात कर रहा हूँ जो मैंने की है। I joined a gym and that is what transformed me. I just didn't stop going. वही बात है ना, बिफोर वी कंटिन्यू दिस, हम एक चीज़ क्लियर आउट कर देते हैं ना कि हम लोग यहाँ पे अपने एक्सपीरियंसेस की बात कर रहे हैं।
So we don't want coaches on Instagram lashing out on us कि कुछ नहीं पता. So we're just sharing our experience. Hopefully it will be able to inspire you. We have certain amount of knowledge through our 9, 10, 7, 8 years of training. So वही हम लोग share कर रहे हैं with you guys. Fat loss. Something that most people get wrong is कि यार eat less and move more. Eat less and move more का जो issue है वो ये है कि एक आदमी 4 रोटी खा रहा है, ठीक है, वो कहता है मैंने वजन कम करना है, वो 3 रोटी खाएगा, या वो 4 रोटी खाएगा और आधा घंटा भागेगा. लेट्स से आधा घंटा भागता है, एक जगह आके उसका वेट स्टक हो जाएगा. अब वो या 2 रोटी खाएगा या 1 घंटा भागेगा. ये करते कराते आप एक ऐसी अनसस्टेनेबल जगह पे आ जाते हैं जहाँ वो 2 रोटी भी खा रहा होगा, 2 घंटे भाग भी रहा होगा और उसका वजन नहीं होगा, और वो एक वेकेशन पे जाएगा और सारा वजन चढ़ा के वापस आ जाएगा. दिस इज वेयर मसल बिल्डिंग कम्स इन. आप अगर अपने फ्रेम के ऊपर थोड़ा सा मसल डालते हो तो आपका मेटाबॉलिज्म तेज हो जाता है. एंड व्हेन योर मेटाबॉलिज्म इंक्रीजेस, व्हाट हैपेंस देन, आपकी बॉडी को 4 की जगह 6 रोटी की जगह 6 रोटी की कंजम्पशन की जरूरत होगी, where you'll be having 4. So you'll actually be burning off calories as you eat what you were already eating. पहली बात, क्योंकि जो लोग जिम में आते हैं वो आते साथ ही कहते हैं खाना क्या बात भाई, I just say यार get into it, ease into it. आओ ट्रेनिंग करो, शुरू करो and start easy. ऐसा वर्कआउट करो कि कल दोबारा आ जाओ. it's been scientifically proven कि हम लोग actually ज़्यादा कर सकते हैं जिससे हमारी बॉडी भी रिकवर नहीं कर सकती. वी कैन डू मोर देन व्हाट आवर बॉडी कैन रिकवर फ्रॉम. ठीक है, और अक्सर हम यही करते हैं क्योंकि मोटिवेटेड जब हम घुसते हैं कहीं तो मेहनत करने के लिए हम लोग बिल्कुल उतावले होते हैं. कहीं जाते हैं, टूट पड़ते हैं, अगले दिन हमसे उठा नहीं जाता बिस्तर से. दिस इज वन ऑफ द मेजर प्रॉब्लम्स. बहुत सारी बातों में एक बड़ा कॉमन क्वेश्चन मुझे आता है, वो ये आता है कि यार मैं जिम क्यों ज्वाइन करूँ, फिटनेस का फ़ायदा क्या है. मैं ये सोच रहा था यार लोग अच्छा दिखने के लिए क्या क्या नहीं करते यार. ठीक है, उस दिन आप मुझे बता रहे थे सर्जरीज, ठीक है, वेयरिंग ऑल दिस ब्रांडेड आइटम्स, इवन यू नो द कार्स दैट यू हैव, द एक्सेसरीज दैट यू हैव, हर चीज़, नेल्स खवातीन कराती हैं, पता नहीं क्या क्या चीज़ें होती हैं टू लुक गुड. जबकि एक वर्ल्ड नोन फैक्ट है कि आप जिम जाएंगे तो यू गोना लुक गुड, यू गोना लुक बेटर देन व्हाट यू लुक नाउ. ठीक है, लेकिन दिस इज नॉट इनफ फॉर पीपल. तो व्हाट अदर रीजंस डू यू थिंक वी शुड गिव पीपल कि यार आप क्यों एक जिम ज्वाइन करें या क्यों फिटनेस जर्नी पे आए? Well, the reasons that we're going to give out to them, they already know all of it. They've been reading it through the internet all over again and again and again. But we're going to say them again. Or proven facts हैं कुछ. Number one, you look good and there are certain other benefits of it. जैसे कि हम बात करते हैं आपकी quality of life. Quality of life बहुत improve हो जाती है. Like, it's not about just your physicality, it's about your mentality as well. और ये दोनों चीज़ें बहुत interlinked हैं. बहुत सारे लोगों को लगता है कि शायद फिजिकलिटी डिफरेंट चीज़ है. व्हेन यू गेट फिट, तो उसमें भी लोग अक्सर, अब जिस तरह हम देखते हैं कि व्हेन पीपल स्टेप इनटू द जिम, उनको लगता है कि जो बॉडी बिल्डर्स होते हैं, जो ये ज़रा फिटनेस फ्रीक्स होते हैं, बड़े सीरियस टाइप ऑफ पीपल होते हैं, इनसे दूर ही रहो भाई, मारेंगे भैया ये. तो हालांकि देर वेरी हम्बल. मैं जहाँ पे भी जिम गया हूँ, द बिगेस्ट गाय इन द जिम इज़ यूजुअली द मोस्ट हम्बल पर्सन एट द जिम. दिस आई वुड ऑल्सो वांट टॉक अबाउट कि यार एक वाहिद एनवायरनमेंट है. मस्जिद में भी लोग ना अपने अपने फिरके अलग कर लेते हैं. एक जिम एक इतना वेलकमिंग एनवायरनमेंट है. एनीबडी दैट गोज देयर, ठीक है, आप जहाँ से मर्जी आए हो, आप जैसे मर्जी दिखते हो, हर बंदा वहाँ आपको हेल्प करने के लिए तैयार है. हर बंदा चाहता है यार आप सक्सेसफुल हो, हर बंदा चाहता है यार आप सक्सीड करें. जितनी उसको फिटनेस के बारे में नॉलेज होगी आपके सेट के रिगार्डिंग, वो आपको सारी बता देगा वहीं पे. इससे वेलकमिंग एनवायरनमेंट नहीं देखा. हाउ हैज इट बीन फॉर यू? It's always been pretty good. मतलब I was lucky enough कि मुझे स्टार्ट में, मैंने अपना, अगर मैं 8-9 years of training की बात करूँ, तो अभी अगर मैं किसी को बताता हूँ ना जिसने कभी ज़िंदगी में वेट नहीं उठाया होगा, उसको वो मेरे से पूछा कितना टाइम हो गया, मैं उसको बताऊँगा ना 8-9 साल हो गए, वो कहता है यार इतने टाइम में बस नहीं. हालांकि उसको नहीं पता कि इंटायर जर्नी में कितने ड्रग्स अगर ना लें तो टाइम लग जाता है, सेटबैक्स होते हैं, 100 चीज़ें होती हैं. तो इनिशियली मैंने अपना 1.5 साल तो ज़ाया ही किया है, बिकॉज आई हैड नो वन टू गाइड मी. तो मैं चाहता था अपनी मर्ज़ी से ट्रेनिंग की, अपनी मर्ज़ी की चीज़ें खाई. तो इवेंचुअली जिस तरह आप मुझे बता रहे थे कि जितना आपको रिजल्ट आना होता है, मैक्सिमम रिजल्ट आप पहले साल में अचीव कर लेते हो.
दिस इज अ वेरी इंटरेस्टिंग पार्ट, लेट्स टेल देम दिस। आप जब पहली दफा वेट उठाते हैं एंड इफ यू ट्रेन प्रॉपरली, आप पहले साल में इतना मसल मास बना लेंगे जितना आप शायद उसके बाद पूरी जिंदगी में नहीं बना पाएंगे। इंटरेस्टिंग फैक्ट। और वो मसल, लेट्स से मेरी मेंटेनेंस 2000 कैलोरीज है, मेरी उस मसल के बाद लेट्स से रिक्वायरमेंट 2500 कैलोरीज हो गई। इसको मैं मेंटेन करने के लिए मुझे 1/9 ऑफ द एफर्ट डालना है जो मैंने इनिशियली डाला था। यानी कि लेट्स से अगर मैं रोज जिम जा रहा था 6 डेज अ वीक, तो अब मुझे मेंटेन करने की शायद एक दफा जाने की जरूरत है हफ्ते में वेट ट्रेनिंग करने की। आई मेंटेन दिस मसल थ्रू आउट माई लाइफ। That is, also one of the good facts about gym, क्योंकि बहुत सारे लोग कहते हैं टाइम नहीं है, हम लोग कौन जाए 6 days a week। तो अगर एक साल में मेहनत कर लें, उसके बाद अगर वो 3 days a week भी जिम जाएं या 3 days a week भी वो कोई अच्छी हेल्दी एक्टिविटी करें, तो आई थिंक दे कैन बी इन गुड शेप थ्रू आउट देयर लाइव्स। तो लेट्स से लुकिंग गुड हमने कवर कर लिया, हमने क्वालिटी ऑफ लाइफ को कवर कर लिया। क्वालिटी ऑफ लाइफ में द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग जो मैंने फील किया है इज स्लीप मैन। ठीक है, अगर आप अच्छे सोए हुए नहीं हैं तो आपका मूड खराब होगा। आपका मूड खराब होगा, आप बेसिकली एक हैंडीकैप सूरत हाल में अपनी ज़िंदगी के फैसले ले रहे होंगे। ठीक है, जिससे आप बात करेंगे, आपकी रिलेशनशिप से लेके आपकी जॉब से लेके हर चीज़ जो है, इट रिक्वायर्स यू टू बी वेल स्लेप्ट टू मेक दोज डिसीजंस इन लाइफ। एंड मैंने ये देखा है कि यार अच्छी वेट ट्रेनिंग के बाद या अच्छे जिम ट्रेनिंग सेशन के बाद, यार यू स्लीप रियली वेल। आई वेक अप फ्रेश। इवन इफ यू स्लीप लेस, लेट्स से अगर आप 8 घंटे नहीं भी सो रहे या 10-12 घंटे नहीं भी सो रहे, 5 to 6 hours ऑफ स्लीप, वो नींद अच्छी, नींद की क्वालिटी बहुत अच्छी है। तो इवेंचुअली इफ यू आर जस्ट स्लीपिंग 5, मेरे साथ ये हुआ है कि मतलब इफ आई स्लीप ओनली, हर बंदे का एक डिफरेंट ऑप्टिमम लेवल ऑफ स्लीप है आई बिलीव। किसी के लिए 8 घंटे, किसी के लिए 7 घंटे। फॉर मी इट्स 5 hours। इफ आई स्लीप 5 hours प्रॉपरली इन डीप स्लीप, तो मैं अगले दिन फुल फ्रेश एक्टिव रहता हूँ। If I sleep more than this or if I sleep less than this, then there's a problem. और ये हम एज करते हुए आहिस्ता आहिस्ता हमारी स्लीप क्वालिटी ख़राब होती है। हमारा 30 साल की बाद जिसको कहते हैं सैक्रोपेनिया, जिसमें मसल गिरता है, वो आपको शुरू हो जाता है। आपका जनरली आप कैलोरीज कम बर्न करते हैं। ठीक है, इसके अलावा ऑस्ट्रोपेनिया यानी कि आपकी हड्डियां कमज़ोर होने लग जाती हैं 30 साल के बाद। तो ये सारी चीज़ों को हम बैटल करते हैं एक जिम के अंदर। ठीक है, तो बेसिकली looking sexy doesn't have many side effects, right? That is true. अगर हम इसके अलावा भी बात करें, let's say हम now we've covered a few things. सबसे पहले looking good, then we've covered the quality of life and sleep. So what else do you think? Does the gym help in fighting? इसी बात पे I would just want to also ask another question. How difficult is it, Zafir? कितना मुश्किल काम है दिन में जिम जाना? एक एक्टिविटी है, हम रोज शाम में जाते हैं। ठीक है, 1 घंटा जो लोग घर पे पबजी खेलते हैं, लोग बाहर निकल जाते हैं कोई और एक्टिविटी करने के लिए, हम लोग जाते हैं सोशलाइज करके वापस आ जाते हैं। तो बेसिकली अब तो इट हैज़ कम टू अ पॉइंट के जहाँ पे अभी ऑटो पायलट पे एक चीज़ लग चुकी है। मतलब इट हैज़ टू बी whenever I'm making a to-do list of the next day, the things I'm gonna do the next day, उस पे जिम तो होता ही होता है। मतलब there is no excuse for this। और अगर मैं नहीं भी लिखता हूँ तो दिस इज़ अ टास्क दैट आई एम गोइंग टू डू नो मैटर व्हाट। तो इवेंचुअली व्हेन यू स्टार्ट गोइंग टू द जिम एवरी डे ओवर एंड ओवर अगेन, तो इवेंचुअली आपके एक रूटीन का काम बन जाता है, आपको इतना मुश्किल नहीं लगता। तो आप अब जो फिजिक मेंटेन कर रहे हैं, लेट्स से आप 2 हफ्ते अगर जिम नहीं जाते तो क्या होगा इसको? नथिंग मच वुड हैपन एक्चुअली। अच्छा, थोड़ा सा एक आपको प्लेसिबो इफेक्ट भी होता है कि यू फील कि थोड़ा सा अपना पंप नहीं हो गया, पंप है मिसिंग द पंप। बाकी आपके मसल मास को कुछ नहीं होता। इफ यू आर ईटिंग राइट एंड इफ यू आर कंज्यूमिंग इनफ प्रोटीन, तो आपका मसल कहीं भी नहीं जा रहा। अच्छा, और ईटिंग राइट आप क्या कहेंगे कि जो बॉडी बिल्डर्स हम खाना खाते हैं नॉर्मली, ये जनरल आवाम नहीं खा सकती या नहीं खाती, या क्या फ़र्क क्या है आपके दोस्तों में और आपके खाने में? क्या फ़र्क है जो जिम नहीं जाते? इज देयर एनी स्पेसिफिक काइंड ऑफ डाइट दैट यू नीड टू डू? कोई ब्रोकली चिकन एंड राइस आपको खानी पड़ती है? कोई few little changes, बाकी मैं सब खाता हूँ उनके साथ। मतलब if I remember, तो मैंने शायद आज तक ज़िंदगी में कभी भी प्रॉपरली, जिसे कहते हैं ना, स्ट्रिक्ट रेजिमेंट ऑफ डाइट कभी फॉलो नहीं किया। मैक्सिमम फॉर अ मंथ, शायद उसके बाद मेरी बात हो गई थी। सो आई हैव मॉडिफाइड माई ईटिंग हैबिट्स
and my training habits, calculating how much I should be eating and how much I should be burning, or how much energy I need to be utilizing to help that food to be processed better. इसी पॉइंट पे व्हाट आई वुड लाइक टू से इज कि एक्चुअली आप खाने पे ज़्यादा हल्का हाथ रख सकते हैं जब आप ट्रेनिंग कर रहे हैं तो ठीक है, आप एक्चुअली एक नॉर्मल इंसान से ज़्यादा खा सकते हैं, आप ज़्यादा चीटिंग कर सकते हैं. लेट्स से आपके पास एक बंदा आता है एक्सट्रीमली अनफिट, ठीक है, इन हिज मिड 30s. हम लेते हैं एक 200 पाउंड का अनफिट आदमी आपके पास आता है और कहता है यार मुझे फिटनेस जर्नी शुरू करना है, मुझे अपनी फिजिक को इम्प्रूव करना है. तो उसका ब्लूप्रिंट किस किस्म का होगा, उसको आप क्या बोलोगे, क्या गाइड करोगे? Well, I think कि सबसे पहले तो I will shake his hand and I will congratulate him कि he has finally taken a decision that most people don't take. प्रॉब्लम आइडेंटिफाई कर. Most people don't even realize they have this problem and they should counter it. तो I would just congratulate him और फिर उसके उठा के थोड़ा सा मैं काउंसलिंग करूँगा कि सबसे पहले before you step into the gym, before you actually decide to depart on this journey, सबसे पहले फाउंडेशन किसी भी चीज़ की होना बहुत ज़रूरी है, whether it's your fitness journey या कोई भी आप बिजनेस स्टार्ट करते हैं या यू वांट टू एक्सेल एट अ जॉब और एट स्टडीज़, तो यू नीड टू हैव द फाउंडेशन सेट राइट. तो फाउंडेशन में मेरे हिसाब से सबसे पहली चीज़ आपका माइंड सेट आता है. तो माइंड सेट में अगर हम बात करें तो माइंड सेट, आपका जो माइंड है, दैट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टूल दैट यू हैव एंड मोस्ट पीपल डोंट रियलाइज इट. वो किस तरह से कि आपका जो माइंड है, all your decisions, 80% or 90% of your decisions, whether there are some physical decisions or there are emotional decisions, all of it has to do with your brain and your mind, the hormones that is it. तो माइंड तो वो बना के आ गया कि आई वांट अ चेंज. नाउ व्हाट डू यू वांट हिम टू? I want him to actually develop a mindset and tame its mind या his mind, कि वो इस तरह से अपने mind को train करे कि his mind will react and respond to whatever he decides to do. अब ये सुनने में बहुत एक दैट अभी से शुरू हो गया, माइंडसेट नहीं है तो ट्रांसफॉर्म नहीं हो सकता. हाँ, कि वो ये चीज़ रियलाइज़ करे कि मैं उसको किस तरह का इंसान बनना है. वेदर ही वांट्स टू बी द गाय, कहता है कि मैं कुछ करूँगा और कभी स्टार्ट नहीं करता, या कहता है कि मैंने ये करना है और कल करेंगे, परसों करेंगे, उससे बात करेंगे, या ही इज़ द सॉर्ट ऑफ पर्सन जिसके बारे में लोग कहते हैं कि इफ़ ही इज़ डिसाइडेड टू डू समथिंग ही इज़ गोना डू इट. तो बेसिकली एक इनिशियल पुश ऑफ मोटिवेशन एंड ही हैज़ टू एक्सेप्ट दिस कि अच्छा ठीक है. और दूसरा उसके बाद फिर जो माइंडसेट डेवलप करना है कि यू नीड टू बी पेशेंट. जिस तरह यू सेड काम द फक डाउन, सो ही नीड्स टू काम द फक डाउन. अब उसमें पेशेंस में जो सबसे पहली चीज़ आती है, उसको आई वुड एजुकेट हिम अ लिटिल बिट अबाउट द स्नोबॉल और द मल्टीप्लायर इफेक्ट, कि ही नीड्स टू बी कंसिस्टेंट. बेशक थोड़ी देर आगे एक्सरसाइज करे, कोई ज़रूरत नहीं है कि आप जिम में आके अपने आप को निस्तो नाबूद कर दो और आप तबाह बर्बाद. हाँ, कोई रिजल्ट नहीं मिले. सो इवेंचुअली स्मॉल बेबी स्टेप्स एंड इवेंचुअली स्टार्ट टू वॉक, इवेंचुअली स्टार्ट टू रन. सरप्राइजिंगली मैंने एक और चीज़ ये देखी है कि मोस्ट पीपल जिस गोल के साथ वो जिम एंटर करते हैं, दे एंड अप सरपैसिंग दैट गोल. मतलब इफ देयर इज समवन जो कि सिर्फ फैट लॉस करने आया हुआ है, इवेंचुअली यू सी हिम एंड अप एट स्टेज. ये तो आई टोटली एग्री. 29 साल के बाबर को अगर आप अभी मेरा फोटो दिखा दें, वो बेहोश हो जाएगा. कंफर्म. ही वुड नॉट बिलीव इट कि मैं कहाँ पहुँच गया हूँ. हाँ, उसके बाद वंस द माइंडसेट इज डन, देन वी कम अप विद द प्लान. बिकॉज एक प्लान के बगैर अगर एक गोल है तो दैट्स जस्ट विशफुल थिंकिंग. मतलब अगर अभी तो हम ये छोटी मोटी चीज़ों पे आ गए ना कि हमने जिम जाना है, अच्छा हमने फिजिक सेट करनी है. इन द अर्लियर डेज जब दे हैड वॉर्स गोइंग ऑन, तो इफ दे सेट कि अच्छा बस जी कल उनको ख़त्म कर देंगे, व्हेन दे डिडंट हैव अ प्लान, तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है. सो यू नीड टू हैव अ प्लान विद क्लियर ऑब्जेक्टिव्स. लेट्स से प्लान वो क्या करके आया, वो ये सोच के आया कि यार मेरा प्लान ये है कि मैं 3 दिन 1-1 घंटा दे सकता हूँ जिम में, ठीक है, और मैं 6 महीने तक की कमिटमेंट कर सकता हूँ. अगर मुझे चेंजेस नज़र नहीं आए 6 महीने के बाद, तो फिर मैं रीथिंक कर लूँगा. क्या ये सही है? आई थिंक इट्स मोर देन, यानी कि हफ्ते में 3 दिन 6 महीने तक की मैं अगर कमिटमेंट एक कर लूँ कि ज़फ़ीर भाई जो मुझे कहेंगे मैं करूँगा, ठीक है, डेफिनेटली आई थिंक इट्स गुड टू गो. और जब मैं जिम जाऊँगा तो ज़फ़ीर भाई क्या मेरी जान निकाल देंगे या ही विल हैव अ गुड टाइम. मतलब अच्छा, मैं ऐसा कुछ नहीं करवाऊंगा. सो ही इज़ गोना एंजॉय हिमसेल्फ गेटिंग फिट. या तो बेसिकली एक अच्छे नोट पे, एक अच्छी मतलब अच्छा इन्वायरमेंट जब एक बंदे को मिलता है, तो इवेंचुअली वांट्स टू कम टू द जिम नेक्स्ट डे.
तो ऐसा मैं कुछ नहीं करवाऊंगा, या मैं ऐसा बंदा नहीं हूँ कि वो मेरी वजह से जिम बार बार आएगा. इट्स इवेंचुअली द रिजल्ट्स दैट ही स्टार्ट सीइंग, जो कि उसकी एक मेंटली एक बेहतर फील कर. कंप्लीटली एग्री, वेरी वेल सेड, वेरी वेल सेड. इसको रैप अप करते हैं फिर. बेसिकली हम दोनों तकरीबन एक 10 साल की जर्नी पे खड़े हैं फिटनेस में. ठीक है, बहुत सारे लोग अपनी फिटनेस जर्नी आज शुरू करना चाहते हैं. बहुत सारे लोग कंफ्यूज हैं कि मैं क्या करूं. इस कंफ्यूजन का हल पहले तो ये है कि इट्स अ वेरी गुड डिसीजन दैट यू टेकन कि आप फिटनेस जर्नी पे जाना चाहते हैं. ठीक है, आई वुड से गो विदाउट थिंकिंग एंटर द जिम. ठीक है, and just bear in mind that the results are going to take time. Fat loss takes a substantial amount of time अगर आपको consistently वो lose भी करना है और रखना भी है. Transformations take a lot of time. ये जितने online आपको 4 हफ्ते की transformation नज़र आती हैं, या ये झूठ है, या ये लोग कोई drugs use कर रहे हैं, या they're using methods क्यों जो ज़्यादा sustainable नहीं रहेगा. My recommendation to everybody is to be easy on yourself no matter how long you're in the journey for, and stay on it for the long haul. That's it, just be consistent. अपना entire focus, अगर to sum it up अगर हम बात करें, there are just a few things. Develop a habit of going to the gym, not एक अपने आप को सजा दे के जिम मत जाएं. Develop a habit of going to the gym and make it a longer run. Be consistent in it, and inshallah eventually you will achieve the goals that you have made. तो जैसा कि आप सब ने देखा कि this was the first episode of Alpha Talk. एंड जिस तरह हम लोगों ने बात की कि यू शुड बी गोइंग टू द जिम एंड स्टेइंग कंसिस्टेंट एक्सेट्रा एक्सेट्रा, हर बंदे के लिए काफ़ी सारी चीज़ें नहीं होती हैं. इसलिए जस्ट द वे दिस venture or this podcast is new for us, we'll be back with more interesting topics and with more to discuss and help you out and help ourselves by learning from you guys. So see you guys around in the next episode of Alpha Talks. Yeah.